Good evening to all. So let us start. We are here to know how to start a good play school. तो क्वेश्चन है why play school? तो play school is having a low investment and is a potential that housewife can run this. Its timing is very less. So we are, as per new education policy, every child has to have a pre-education before entering to the formal education. So play school play a great role in this. So which language you prefer? Can you please write in the chat box? So you want English or Hindi? Which language you require? Okay, some people are saying English, some people are saying Hindi. So we will make a mix and match that everybody can benefit it from this. तो जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है हम उसे हिंदी में भी कन्वर्ट करते जाएंगे. ठीक है. तो लेट अस इंट्रोड्यूस अवरसेल्फ. वी आर ए ग्रुप ऑफ कंपनीज. एक हमने नया ऐप डेवलप किया है जिसमें कि यू कैन check the teacher engagement time, notification of various hazard. We are incubated in IIT Madras and we have 2% shareholding of IIT Madras. One of our parent company is Aggregate Pre-Primary School, which is looking after the auditing and approval of play school. Then it's we have a dedicated team for various approvals like trust or society registration, Section 8 of private limited company registration, NOC from State Education Department, SOAP and Establishment Act registration, and FSSAI registration if meal is cooked inside the school. Then we have another company, Viralka Engineers Private Limited, which is established in 2012, and we have a turnover of 2.36 crore in 2024-25. Viralka Engineers is supplying books and stationery, uniforms, furniture, toys, memento, and certificates. Third company is Anytum Technology, which is incubated in IIT Madras. I have already told you. And we provide app-based solution, walk-in attendance. अभी क्या अटेंडेंस का सिस्टम है कि आपको अटेंडेंस मशीन के सामने जाके खड़े होना पड़ता या फिंगरप्रिंट स्कैन करने पड़ते हैं, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है. यू हैव टू जस्ट वॉक इन एज इज यूजुअल एंड द सिस्टम विल टेक योर अटेंडेंस. देन द टीचर एंगेजमेंट टाइम, how much time teacher is engaged with the students and how much time he is doing some his own work like busy in mobile phone or doing something else. So that will be counted by our system. The notification of various hazard. Nowadays, how CCTVs are working as a post-mortem report they are producing. जब कोई हो जाता है, जब कुछ कांड हो जाता है, उसके बाद सीसीटीवी फुटेज को देखना पड़ता है एंड देन वी कैन कम टू नो व्हाट हैपेंड. एंड वो पोस्टमार्टम की तरह से ही काम करता है, प्रोएक्टिव एक्शन नहीं होता है. लेकिन हमारे सिस्टम में प्रोएक्टिव एक्शन होगा और ओनर को या टीचर को इमीडिएटली नोटिफिकेशन जाएगा अगर कुछ भी हैजार्ड होता है तो. एनालिसिस ऑफ स्टाफ बिहेवियर, नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ स्टाफ और अटेंडेंट इन द क्लास. तो ये सारे नोटिफिकेशन ये हमारा सिस्टम भेजता है. नेक्स्ट इज आवर विराल का थिंक टैंक अकादमी.
who is preparing the syllabus according to new education policy. They are doing the printing of books and quality control, study plan preparation, and preparation of coaching notes up to class 12th, or preparation of exam papers. So these are 4 of our companies. तो इसमें बेनिफिट क्या है कि आपको हम फ्रेंचाइजी मॉडल बेचने नहीं आए हैं. हम चाहते हैं कि आप जिस एरिया में प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, यू कैन टेक आवर सर्विसेज फ्रॉम दैट पार्ट. आपको चाहिए कि आपको अपने नाम से स्कूल खोलना है, यू वांट टू ओपन योर ओन स्कूल, और यू आर फेसिंग प्रॉब्लम इन अप्रूवल्स, तो वी कैन प्रोवाइड यू द अप्रूवल्स. अगर आपको लगता है कि स्कूल भी है हमारा, हमने रिकॉग्निशन भी ली हुई है, वी वांट ओनली फर्नीचर, यूनिफॉर्म, टॉयज एंड बुक्स, तो वो भी हम प्रोवाइड कर सकते हैं. इफ यू वांट ओनली एआई बेस्ड सिस्टम, तो वो भी हम प्रोवाइड कर सकते हैं. तो वॉट एवर नीड यू हैव, वी कैन प्रोवाइड एवरीथिंग. वी आर वर्किंग एज ए सैंडबॉक्स. वी आर नॉट हियर टू सेल यू द फ्रेंचाइजी, वी आर वर्किंग एज ए सैंडबॉक्स. जब भी आप तरक्की करते हैं, किसी हाइट पे जाते हैं, देयर इज ए प्रोबेबिलिटी ऑफ सेटबैक, आप गिर सकते हैं. तो उस गिरने में आपको कम से कम हार्म हो, तो वी आर वर्किंग एज ए सैंडबॉक्स फॉर यू. नाउ आई वांट टू इंट्रोड्यूस आवर टीम member. He is our mentor, Sri Rajpal Singh. He is having more than 35 years of experience in education department. He is also awarded as a National Teachers Award by Honorable President of India, Pratibha Devi Singh Patil. He has worked in Education Board of UP and did various syllabus preparation work, audit work, and training to the teachers. He is Mradul Viralka, BTech and MSc. He is alumni of IIT Madras. He is BTech in Mechanical Engineering, MSc in Physics, and BS in Data Science. He is working in computer vision. He has published a paper in USA magazine, Additive Manufacturing, Development of Hybrid Model to Estimate Surface Roughness. He got funding from IIT Madras to develop the right attention product for the schools and colleges for 2% shareholding of IIT Madras. He is currently operating from IIT Madras, Chennai. Then our director, Dr. Alka Singh, she is having more than 25 of experience. She has PhD and MPhil, bringing 25 years of experience. She is well willing to accept challenging position in teaching. And she has also written a book, Chauhan Satta Ka Vikas. It is available on Amazon and Flipkart. Then myself, Virender Singh. I am 25 years of experience. I am BTech and PG TBM. I have worked with various OEM like Tata Motors, Ashok Leyland, JBM, and Ace Cranes. I have a proven capabilities of manufacturing, supply chain management, new product development, greenfield project development, and all the procurement and supply chain activity I am looking here. Then Mrs. Silpi Kalra, she is B.Ed, CFA, and MBA. She is academic coordinator for NTT BA education program and providing news, books and syllabus, exam paper preparation. She is taking care of all these activities. She ensure timely planning and execution of academic calendar, syllabus, lesson plan, and assessment. Monitor integration of value education like life skills, co-scholastic elements into academics, conduct regular teacher training session and performance review. Maintain updated record of curriculum plans, exam schedule, results, and student performance. Mrs. Rashmi Sharma is a marketing manager. She is looking after the marketing research, site selection, and audit of play school, and execute campaigns online and offline both to drive student admission.
monitoring and optimizing lead generation channels through websites, social media like Facebook and Instagram. This is the content of today's market research and planning. Create a business plan. What are the legal formalities for opening a play school? Then choose a suitable location, design and infrastructure, curriculum design, staffing, technology integration, marketing and branding, safety and hygiene protocol, admission and operation, growth and expansion. So we give more time on the technology integration, because other things you will get from other schools also, but technology our main part. We are giving you the special app that is Right Attention, and our ERP is also best in the class. मार्केट रिसर्च, जब भी आप स्कूल खोलते हैं यू हैव टू आइडेंटिफाई डिमांड इन योर एरिया. नंबर ऑफ चिल्ड्रन कितने हैं आपके एरिया में, वर्किंग पेरेंट्स कितने हैं, इनकम लेवल क्या है. इनकम लेवल के हिसाब से आप अपनी फीस डिसाइड कर सकते हो. उसी फीस के हिसाब से आप अपने टीचर्स का रिक्रूटमेंट करना है, कितना रेंट आपको देना है, कितने एक्सपेंसेस हैं, वो सब इसी बेसिस पे मैनेज होते हैं. सपोज करो आप एक ऐसी सोसाइटी में पहुंच गए जहां पे बच्चे ही नहीं हैं, तो वहां स्कूल खोलने का कोई पर्पज नहीं है. देन स्टडी कंपटीशन, व्हाट आर द एग्जिस्टिंग स्कूल्स एंड व्हाट दे ऑफर, व्हाट दे लैक, उसमें क्या क्या फैसिलिटी है और क्या क्या वो नहीं दे रहे, उनकी यूएसपी क्या है, तो वो आपको देखना पड़ेगा. देन डिसाइड टारगेट पेरेंट्स. तो टारगेट पेरेंट्स जिसके 1.5 साल से 5 साल के बच्चे हैं वही आपके लिए टारगेट पेरेंट्स हैं. इसके बाद आपको एक बिजनेस प्लान क्रिएट करना पड़ेगा. मिशन विजन क्या है आपका, आपकी यूनिक वैल्यू प्रोपोजिशन क्या है, क्या नया आप देने जा रहे हैं. बच्चों के लिए सेफ्टी एक बहुत मेजर कंसर्न है, तो वो आप कैसे इंश्योर करेंगे. फिर आप अपना एक एस्टिमेटेड बजट बनाओगे, रेवेन्यू मॉडल, कहां से पैसा आएगा, कितने मंथली एक्सपेंसेस होंगे, ये सब देखना पड़ेगा. फिर उसके हिसाब से आपको आरई निकालना पड़ेगा. देन लीगल फॉर्मेलिटीज की अगर बात करें एक प्ले स्कूल के लिए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू रजिस्टर योर प्ले स्कूल अंडर सुटेबल बिजनेस एंटिटी, लाइक ट्रस्ट बनाना है, सोसाइटी, सेक्शन 8 की कंपनी या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी. अगर आप किसी और से फ्रेंचाइजी ले रहे हो तब आपको ये सब करने की जरूरत नहीं है. खुद का खोलना चाहते हो तो यू हैव टू मेक ट्रस्ट, सोसाइटी, सेक्शन 8 कंपनी और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी. Then obtain necessary license approval. It may vary from state to state. Like some states are asking for building plan approval also. लेकिन कुछ है कि वो नहीं बिल्डिंग प्लान को मांगते हैं. उसके बाद आपके पास फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट होना चाहिए, फायर की एनओसी चाहिए, हेल्थ एंड हाइजीन सर्टिफिकेट चाहिए, किसी डॉक्टर से टाई अप चाहिए आपका, एनओसी फ्रॉम एजुकेशन डिपार्टमेंट. देन सोप एंड एस्टैब्लिश एक्ट में आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए. और अगर आप मील प्रोवाइड कराते हैं बच्चों को तो यू हैव टू हैव ए FSAI सर्टिफिकेट आल्सो. अगर आप अपनी खुद की फ्रेंचाइजी खोल रहे हैं तो यू हैव टू अप्लाई फॉर ए ट्रेडमार्क आल्सो. पता चला आपका ब्रांड नेम बन गया है, उसके बाद आपके नाम से 10 स्कूल और खुल गए, तो यू हैव टू अप्लाई फॉर द ट्रेडमार्क एज वेल. चूज ए सुटेबल लोकेशन. लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि कोई भी छोटे बच्चों को बहुत दूर नहीं भेजना चाहता, सब अपनी लोकेलिटी में चाहते हैं. तो आपको जो प्रेफरेंस है वो रेजिडेंशियल एरिया में देना है. ऐसा नहीं है आप हाईवे पे खोल लें. बाकी बिजनेस के लिए तो हाईवे चाहिए होते हैं कि आपकी प्राइम लोकेशन है, फुटफॉल कितना है, वो सब. लेकिन इसमें ये नहीं मैटर करता. इसमें मैटर करता है आप रेजिडेंशियल कॉलोनी के कितने पास में है. वो कहीं आपको हाईवे तो क्रॉस नहीं करना पड़ रहा है, कोई मेजर स्ट्रीट तो क्रॉस नहीं करनी पड़ रही. इस जगह पे आपको खोलना है, बच्चे हो और वो रेजिडेंशियल एरिया के पास में. तो प्रिफर ग्राउंड फ्लोर, और मैक्सिमम आप फर्स्ट फ्लोर तक जा सकते हैं, उससे ऊपर नहीं जाना है. मिनिमम 1000 से 2000 स्क्वायर फीट एरिया चाहिए. और एंश्योर प्रॉपर लाइटिंग, वेंटिलेशन, और ये नियर रेजिडेंशियल एरिया के होना चाहिए, हाईवे पे नहीं चाहिए. Then design infrastructure. Infrastructure should be colorful, child-friendly interiors. Classroom must be AC. इसमें हम आपकी ये हेल्प कर सकते हैं. अगर आप अपने स्कूल का हमें
साइज भेज दें कि मेरी वॉल साइज ये है, तो हम आपको डिजाइन करके यहां से भेज सकते हैं। देन टॉयज एंड लर्निंग मटेरियल, टॉयज एंड लर्निंग मटेरियल्स एज अप्रोप्रिएट होने चाहिए, छोटे बच्चों के हिसाब से, कि उनको चोट ना लगे, कोई भी शार्प एजेस नहीं चाहिए। मोंटेसरी टूल प्रिफर्स हैं। प्लान ए किड लाइब्रेरी एंड पपेट थिएटर, बच्चों को पपेट के साथ खेलने में बड़ा मजा आता है, सॉफ्ट टॉयज के साथ खेलने में मजा आता है। तो कार्टून की बुक्स की लाइब्रेरी होनी चाहिए आपके यहाँ, पपेट थिएटर चाहिए, आउटडोर प्ले एरिया होना चाहिए, सॉफ्ट फ्लोरिंग चाहिए जिससे चोट ना लगे, फर्नीचर शुड बी शेफ, नॉन टॉक्सिंग और विदाउट शार्प एसेस, सीसीटीवी मस्ट है, एसी क्लासरूम मस्ट है। और उसके अलावा आप एक मस्ती जोन बना सकते हैं जिसमें स्प्लैश पूल, सैंड पूल, ये सब दे सकते हैं उसमें। देन क्यूरिकुलम डिजाइन, चूज बिटवीन मॉन्टेसरी और प्ले स्कूल, या मिक्स एंड मैच भी हो सकता है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मॉन्टेसरी एंड प्ले स्कूल? तो मॉन्टेसरी इज ए फॉर्मल एजुकेशन जहां पे पढ़ाई की तरफ ज्यादा ध्यान दिया जाता है, लेकिन प्ले वे इज ए डिफरेंट टाइप ऑफ एजुकेशन जहां प्ले, खेल खेल में लोगों को सिखाया जाता है। तो प्ले वे इज द बेटर वे इन टूडेज वर्ल्ड। मिक्स भी आप कर सकते हो इसमें दोनों। जो कंटेंट होगा उसमें लैंग्वेज, नंबर्स, मोटर स्किल्स, लाइफ स्किल्स ये होंगी, म्यूजिक, आर्ट, स्टोरी टेलिंग, फेस्टिवल एंड योगा। स्टोरी टेलिंग डेली के लिए मस्ट होना चाहिए आपके क्लास में, क्योंकि स्टोरी बच्चों को सुनने में बड़ा मजा आता है, वो आपके स्कूल में अट्रैक्ट होंगे अगर आप उन्हें डेली कोई स्टोरी सुनाएंगे, उनको पोएम सुनाएंगे। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, पढ़ाई से ज्यादा वो स्टोरी टेलिंग में बच्चों को, जो पेरेंट्स हैं उनको बहुत अच्छे, ये नहीं चाहिए कि इसके मार्क्स कितने आ रहे हैं प्ले स्कूल में या ग्रेडिंग कितनी आ रही है। उनको चाहिए कि एक तो जो मैजिक वर्ड्स हैं, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, हाउ आर यू, प्लीज, ये सब चीज जो मैजिक वर्ड्स हैं ये पेरेंट्स ज्यादा सुनना चाहते हैं। तो ये जितने ज्यादा से ज्यादा आप प्रैक्टिस करा सकते हो दैट इज बेटर। एंड एक्टिविटीज एंड सेलिब्रेशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। पेरेंट्स को इसमें बड़ा इंटरेस्ट होता है, फेस्टिवल सेलिब्रेशन करें, आप बर्थडे सेलिब्रेशन करें, उसके फोटो आप सोशल मीडिया पे अपलोड करें, इससे आपका प्रमोशन होगा। उन फोटो को आप लोकल एरिया में बूस्ट करें। बूस्ट कैसे करना है वो भी हम आपको बता देंगे। मंथली थीम कोई सेलेक्ट करें, उसके हिसाब से उसमें फेस्टिवल सेलिब्रेशन करें। एजुकेशन ट्रिप लेके जाएं, कंपटीशन एंड रोल प्ले, पिकनिक्स और समर कैंप बड़े इंपॉर्टेंट हैं। स्पेशल डे सेलिब्रेशन लाइक अर्थ डे, ग्रीन डे, पिंक डे, डॉक्टर्स डे, आर्मी डे, टीचर्स डे, ये सब सेलिब्रेट करनी चाहिए। देन स्टाफिंग शुड बी एजुकेटेड। अगर आपके एरिया में एजुकेटेड स्टाफ अवेलेबल नहीं है तो वी हैव एंटिटी फैसिलिटी आल्सो। आप अपने ही प्ले स्कूल में एंटिटी स्टार्ट कर सकते हैं। तो हम आपको कोर्स क्यूरिकुलम देंगे, ऑनलाइन क्लासेस लेंगे और सर्टिफिकेट भी देंगे। तो आपके पास अगर ट्रेन टीचर नहीं है तो अगले 1 साल में आपके वही टीचर ट्रेन हो जाएंगे। देन एडिशनल स्टाफ में अपॉइंट हेल्पर स्टाफ, मेड, एडमिन, सिक्योरिटी। चाइल्ड टीचर रेशियो शुड बी 1:10 इज आइडियल, लेकिन अगर उससे आपके एक्सपेंसेस नहीं निकल रहे हैं तो यू कैन गो अप टू 1:15। एक टीचर्स के पास 15 से ज्यादा बच्चे नहीं होने चाहिए। रेगुलर ट्रेनिंग शुड बी प्रोवाइडेड। देन टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन। तो I want to hand over this session to Mr. Mradul for explaining about the technology. What technology we have developed with the help of IIT Madras. Mradul? Yeah, I'll begin now. Yeah, may you please give me permission to share? Oh. कैमरा ऑफ करो। I hope my screen is visible. Yeah, visible. उनके उससे हो रहा है।
Yeah, I request everyone to mute their mic. So I'll begin now. So I'm Radul Viralka. Mr. Virendra Singh has done a fantastic job in introducing me. So I'll start with the slides itself. So first of all, let's get through the definitions. पहले definitions के बारे में बात कर लेते हैं, then we can go back. So today I'm going to tell you about two things. First of all is computer vision and second is agentic AI. अब कंप्यूटर विजन क्या होता है? कंप्यूटर विजन इज लाइक ह्यूमन विजन क्या होता है? ह्यूमन विजन इज बेसिकली हम कुछ चीज देखते हैं, उसके बाद उसको इंटरप्रेट करते हैं क्या है। जैसे इस केस में यहाँ पे बोल ऑफ फ्रूट रखा है, तो पहले हम फ्रूट्स देखेंगे, फिर इंटरप्रेट करेंगे कि यहाँ पे एप्पल रखा है, ग्रेप्स रखे हैं, उसके बाद फिर उस पर एक्शन देते हैं। कंप्यूटर विजन क्या करता है कि कंप्यूटर भी ये इमेज देखता है, फिर उसको इंटरप्रेट करता है। जैसे कंप्यूटर ये इमेज देखेगा ग्रेप्स की, उसके बाद आइडेंटिफाई करेगा ईच एंड एवरी ऑब्जेक्ट की ग्रेप्स है, एप्पल है। दैट्स कंप्यूटर विजन बेसिकली। एजेंटिक एआई होता है कि आफ्टर यू सी समथिंग व्हाट डू यू डू। जैसे अगर मैंने ये बोल देख लिया तो उसके बाद मैं क्या करता हूँ? आई माइट फील हंग्री, आई माइट थिंक आई शुड पुट इट इन फ्रिज एक्सेट्रा। सिमिलरली कंप्यूटर भी सोचता है, व्हेनेवर इट सीज समथिंग it thinks what should I do next. Let's say it sees grapes. What should I do next? Maybe do a Google search on it. Yeah, Please mute everybody. yeah, done. So now I'll get back to what is the problem. Problem ये है कि you are losing money every day, not because your teachers are bad or your students are weak, but because you are running a school blind. You cannot improve anything which is not measured, and in preschool that truly is invisible. पता तभी लगता है जब पेरेंट्स अपने बच्चों को निकाल लेते हैं या कंप्लेंट फैल जाती है। अब इसमें इसका मतलब क्या है कि प्री स्कूल, इसके स्टैटिस्टिक्स पे बात करते हैं कि 62% ऑफ ड्रॉप आउट बिहेवियर, मतलब 62% जो बच्चे निकलते हैं बाहर, वो टीचर की वजह से, मतलब टीचर और बच्चे के बिहेवियर की वजह से निकलते हैं। इट्स नॉट बिकॉज ऑफ करिकुलर, इट्स नॉट बिकॉज कि आपका स्कूल बहुत रिमोट लोकेशन में है। 31% जो बच्चे निकलते हैं वो पेरेंट्स निकालते हैं, वो इसलिए निकालते हैं क्योंकि उनको सेफ नहीं लगता आपका स्कूल का एनवायरमेंट, एंड दिस इज ग्राउंड ट्रूथ। तो अगर ये दो चीजें सॉल्व हो जाए तो आपका ड्रॉप आउट रेट 62% तो पहले ही कम हो जाएगा। और या अब यहाँ पे ना टीचर का एटिट्यूड, मतलब अ सिंगल बैड डे इन प्ले स्कूल इज वेरी क्रिटिकल, क्योंकि एक दिन अगर कोई गलती हुई तो पेरेंट्स विल कम टू यू एंड दे विल कंप्लेन अ लॉट, एंड इट आल्सो ब्रेक्स द ट्रस्ट बिटवीन पेरेंट्स एंड टीचर एंड चिल्ड्रन आल्सो। सो दिस इज हेयर वी सॉल्व विल सॉल्व इट। हाउ डू वी सॉल्व इट? पहले तो प्रॉब्लम डिफाइन करते हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है चाइल्ड सेफ्टी, कि अगर बच्चा स्कूल में आया है तो ही और शी शुड बी सेफ। दैट्स आवर नंबर वन प्रायोरिटी। उसके बाद ये जब इंश्योर हो गया तो फिर हमें हमारी प्रायोरिटी, मतलब हमारे प्रॉब्लम ये है किसी भी प्ले स्कूल की जिसके पास एक से ज़्यादा है, वो ये है कि टीचर कर क्या रही है एक्चुअली क्लास में। मतलब आप एक क्लास में खड़े होकर देख सकते हो, दो क्लास में खड़े होकर देख सकते हो। लेट्स से आपके पास दो स्कूल है, तो आप नहीं बता सकते कि टीचर क्या कर रही है। चलो आपको थोड़ा बहुत पता भी लग गया कि टीचर क्या कर रही है, फिर दूसरा क्वेश्चन आता है टीचर कैसे कर रही है। तो वी डोंट हैव परफॉर्मेंस डेटा फॉर इट। जैसे जब बड़ी क्लासेस होती है 12th या 11th, वहाँ पे परफॉर्मेंस डेटा होता है कि उसने एग्जाम में कैसे परफॉर्म किया, बोर्ड्स में कैसे नंबर आए या फिर जेई में कैसे आए। पर प्ले स्कूल में ये वाला केस नहीं है, क्योंकि प्ले स्कूल में एज सच कोई स्टैंडर्डाइज टेस्ट नहीं है। उसके बाद लेट्स से परफॉर्मेंस का भी पता लग गया, फिर देयर इज अ अनसर्टेनिटी अबाउट इट। लेट्स से आपने एक क्लास छोड़ी है, उसमें एक्चुअली टीचर था या नहीं था, या लेट्स से बच्चे खेल रहे हैं तो वहाँ पे एक्चुअली मेड थी या नहीं थी। दैट्स अ मेजर कंसर्न, बिकॉज there might be a case where people are not there, like appropriate people are not there, and because of absence of teacher etc something happens, like a fight happens, or a child is engaged into a hazardous activity, let's say कबर्ड पे चढ़ गया है, लेट्स से उससे गिर गया, स्विंग से गिर गया। और लास्ट प्रॉब्लम ये है कि आपने मेड तो हायर कर ली या आपने क्लीनिंग स्टाफ हायर कर लिया, पर वो एक्चुअली कैसी सफाई कर रहा है। ये 5-6 प्रॉब्लम है विच आर मेजर प्रॉब्लम्स इन प्ले स्कूल। अब
लेट्स क्राइम का ही देखते हैं। क्राइम का इंडिया में हर साल बढ़े जा रहा है। 65% बच्चे रिपोर्ट करते हैं दे फेस कॉर्पोरल पनिशमेंट। कॉर्पोरल पनिशमेंट ये होता है कि बच्चे आ जाए, उनकी पिटाई हो जाए स्कूल में, टीचर कर दे या फिर आपस में बच्चे कर दे। और ये ऐसा नहीं है कि एक ही उसका है, ये हर स्टेट का इशू है। यूपी का भी है, हरियाणा का भी है, मध्य प्रदेश का भी है, गोवा का भी है। तो लेट्स टॉक अबाउट फर्स्ट चाइल्ड सेफ्टी मॉड्यूल। हम चाइल्ड सेफ्टी कैसे इंश्योर करते हैं? पहले तो हम 100% लाइक रियल टाइम काउंट ऑफ ईच एंड एवरी क्लास, मतलब जो भी सीसीटीवी डेटा है उसको 100% एआई के पास जाता है और एआई उसको एनालाइज करता है। मैं आपको वीडियो दिखाता हूँ। जैसे इस केस का ले लेते हैं। जैसे ये है असेंबली है, तो इसमें असेंबली में ये सीसीटीवी फुटेज है फरीदाबाद के स्कूल की, जहाँ पे सिस्टम लगा हुआ है। तो सबसे पहले आइडेंटिफाई करता है कि कितने टीचर्स हैं, कितने बच्चे हैं, बच्चे क्या कर रहे हैं, कितना फर्नीचर है। उसके बाद हो क्या रहा है, चल क्या रहा है, जैसे असेंबली चल रही है, कौन प्रेजेंट कर रहा है, कौन क्या कर रहा है, ये देखता है। तो ये हर टाइम रियल काउंट देता है। रियल काउंट देने के बाद ये रिपोर्ट्स भी जनरेट करता है। रिपोर्ट्स कुछ आपकी ऐसी दिखती हैं कि लेट्स से सुबह 8 बजे 49 पीपल प्ले एरिया में थे, 3 लोग रिसेप्शन में थे। उसके बाद 10 बजे ये डिस्ट्रीब्यूशन हो गया कि 5 ही लोग प्ले एरिया में बचे, 12 लोग उसमें गए टॉडलर सेक्शन में या नर्सरी में, 3 लोग रिसेप्शन पे रहे। सो ऑन सो फोर्थ। सबसे पहला काम हम ये करते हैं कि हम देखते हैं कि कौन कहाँ पे है, टीचर कहाँ पे है, बच्चा कहाँ पे है, उस बच्चे के साथ कौन कौन है। उसके बाद फिर हम ये देखते हैं कि कोई बच्चा अकेला तो नहीं है, मतलब जैसे क्लास है उसमें टीचर है या नहीं है, इज देयर अ टीचर प्रेजेंट। वो कुछ ऐसा सा दिखता है। ये है जैसे लेट्स से ये क्लास है, इसमें ये यहाँ पे टीचर को होना चाहिए, बैठे होना चाहिए, पर वो जो हमारा एआई मॉडल है वो आइडेंटिफाई कर रहा है कि यहाँ पे चेयर है पर एम्प्टी चेयर है। ये सेम बच्चों के साथ भी करता है कि ये जैसे बेंच है पर एम्प्टी बेंच है, यहाँ पे एक बच्चा होना चाहिए पर बच्चा नहीं है। और जो बच्चे हैं उनको भी आइडेंटिफाई करता है कि ये इतने बच्चे हैं। इससे ये पता लगता है कि अगर कोई बच्चा अकेला रह गया है, किसी क्लास में नहीं है, तो वो वाला पार्ट है। इंश्योर दैट टीचर इज ऑलवेज प्रेजेंट इन क्लास। ड्यूरिंग प्ले टाइम ये देखता है कि बच्चों के साथ मेड या टीचर है नहीं है, ये कुछ ऐसा सा दिखता है। जैसे ये बच्चे हैं, ये बच्चा आइडेंटिफाई कर रहा है कि ये सारे बच्चे हैं, और ये आइडेंटिफाई कर रहा है कि ये मेड है, ये आइडेंटिफाई कर रहा है कि टीचर है। तो अगर बच्चों के साथ कोई मेड या टीचर नहीं है तो वो फ्लैग करेगा, कॉल करेगा आपको। उसके बाद चेक करता है लंच फिनिश हुआ है नहीं हुआ। ये कंप्लेन हमारे पास कंसिस्टेंटली आती थी कि लंच टाइम में बच्चे क्या कर रहे हैं, तो वो हमने फीचर नया ऐड किया है, प्रिवेंट चाइल्ड नेग्लेक्ट एक्सेट्रा। उसके बाद ये सब करने से क्या होता है कि पेरेंट्स को रिएश्योरेंस मिलता है। लेट्स से अगर आपके पास ये डैशबोर्ड है जिसमें दिखा रहा है कि आपका बच्चा है, इतनी देर उसके साथ था और इतने टाइम अनअटेंडेड था, तो वो चीज़ पेरेंट्स देखते हैं, तो आपके स्कूल की रेपुटेशन स्ट्रेंथन होती है, क्योंकि आपके आसपास का कोई स्कूल ये नहीं कर रहा होता। तो ये आपका यूनिक सेलिंग पॉइंट बन जाता है। आप डायरेक्टली पेरेंट्स को भेज सकते हो कि हम आपको डैशबोर्ड देते हैं, एआई मैनेजर है जो हमारी चीज़ें मैनेज करता है। हाँ, रियल टाइम मॉनिटरिंग, मोबाइल यूजेज भी बताता है ये टीचर की, अगर आपका कोई टीचर मोबाइल यूज़ कर रहा है तो कुछ ऐसा सा दिखता है। जैसे ये आ गया, तो ये टीचर बैठे हुए हैं, मोबाइल यूज़ कर रही थी ये, तो उनका मोबाइल पे वो आ गया, मतलब हमारे एआई सिस्टम ने देख लिया कि वो मोबाइल यूज़ कर रही है। ये फिर अलर्ट जनरेट करता है, वो मैं नेक्स्ट पार्ट में बताता हूँ आपको। उसके बाद हम डैशबोर्ड देते हैं। दूसरा हमारा है कोर, वो है कि क्लीनिनेस भी देते हैं हम, कि जैसे फ्लोर क्लीन है नहीं है, या फिर आपका फर्नीचर करेक्टली अरेंज्ड है नहीं है। उसके बाद लेट्स से आपने शाम को शाम को प्रोटोकॉल किया है कि जब सारे लोग चले जाते हैं उसके बाद सफाई हो जानी चाहिए, तो वो एक्चुअली हो रही है नहीं हो रही। तो वो कुछ ऐसा सा दिखता है कि आपका फ्लोर आएगा और फ्लोर में दिखा देगा कि ये सॉलिड डर्ट है, ये लिक्विड डर्ट है, ऐसा है। उसके बाद वो दिखाने के बाद क्या करते हैं, दिस इज फर्स्ट पार्ट ऑफ इक्वेशन। उसके बाद व्हेन दिस इज डन, एजेंटिक एआई का पार्ट आता है कि सबसे पहले वॉयलेशन डिटेक्ट होगा कि लेट्स से एक क्लास में एक टीचर होना चाहिए पर नहीं है,
तो दैट्स फर्स्ट वायलेशन डिटेक्टेड। उसके बाद ऑटोमेटिक रिजोल्यूशन प्लान बनेगा कि बेसिकली अगर क्लास में टीचर नहीं है तो क्या, फिर वो सोचेगा कि मैं जो एजेंटिक एआई है दैट विल टेक अ डिसीजन दैट आई शुड कॉल द टीचर राइट नाउ, लेट्स से एलकेजी में नहीं है तो आई शुड कॉल एलकेजी's टीचर राइट नाउ। So it will automatically, AI will automatically call LKG's teacher and also listen its response। वो सुनेगा कि टीचर नहीं आएगा, टीचर ने कहा लेट्स से मैं 5 मिनट में आ रही हूँ, तो वो 5 मिनट बाद दोबारा देखेगा कि 5 मिनट में टीचर आई या नहीं आई, या 5 मिनट के दौरान कोई और आया या नहीं। अगर 5 मिनट में टीचर आएगी तो वेल एंड गुड है, नहीं आए तो वो दोबारा कॉल करेगा टीचर को। वो तब तक कॉल करता रहेगा जब तक इट विल मेक श्योर दैट देयर इज समवन इन एलकेजी क्लास सुपरवाइजिंग टीचर्स। अगर ऐसा नहीं हो रहा तो वो फिर एस्केलेट कर देगा, वो ओनर को बता देगा। दैट्स द होल पॉइंट। सबसे पहले फ्रॉम कंप्यूटर विजन विल आइडेंटिफाई व्हाट इज द वायलेशन एंड फ्रॉम एजेंटिक एआई विल ट्राई टू रेक्टिफाई द वायलेशन। इफ नॉट रेक्टिफाइड विल एस्केलेट इट टू ओनर लेवल। Yeah, so I'll end my presentation by saying that now it's time to act smart. जैसे जैसे AI आ रहा है, you have to act smart, not harder. Technology है, you can implement it, make your school go to the next level. Now this is end of my presentation. यहाँ पे मेरी presentation खत्म होती है. To know more about the solution, please join the next session, which will be upcoming. उस सेशन में आई विल टेल यू प्राइसिंग कि कैसे प्राइसिंग करेंगे हम। आई विल आल्सो टेल यू कौन सा हार्डवेयर आपको दिया जाएगा। आई विल आल्सो टेल यू कि आपके हाथ में डैशबोर्ड कौन सा आएगा और कैसे वो कौन सा डैशबोर्ड पेरेंट्स के हाथ में जाएगा और उससे स्कूल पे क्या फर्क पड़ता है। जैसे आई विल फिनिश माय प्रेजेंटेशन बाय शोइंग यू अ रिपोर्ट व्हिच वी हैव गिवन टू अ स्कूल इन फरीदाबाद। तो ये पहले मंथ की रिपोर्ट है। सबसे पहले तो हमने उन्हें अटेंडेंस सिस्टम ही दिया है। वो कुछ ऐसा ऐसा सा दिखता है, मतलब आपके सीसीटीवी से हम लोगों को आइडेंटिफाई कर लेंगे, अटेंडेंस आ जाएगी। अटेंडेंस के बाद हम उसका एनालिसिस करेंगे कि जैसे 15 दिन में इतने लोग लेट थे, ये बच्चों की है और ये वो है, ये लेट का मार्क है, तो आपके इतने टीचर लेट थे, आउट ऑफ ये परसेंटेज इतने परसेंटेज लेट थे। उसके बाद ये दिखाएंगे कि कितने लेट थे, कितने एक्चुअली नहीं थे। इससे ही करने से काफ़ी सुधर जाते हैं। जिसके अगले नेक्स्ट मंथ के ट्रेंड में हमने देखा कि देयर वाज अ सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट इन पीपल हु आर कमिंग लेट और नॉट। उसके बाद ये कि कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी के आपके किस टाइम में कितने कहाँ लोग थे, जैसे ये मैंने आपको दिखाया, ये वाला भी कि इस टाइम में इतने लोग यहाँ पे थे, या ये वाली चीज़ चेंज आएगी। फिर क्लीनलीनेस की रिपोर्ट्स भी जाएंगी सिमिलरली। तो नेक्स्ट सेशन में आई विल आल्सो मेक these reports public. I'll also tell you what is the rollout plan, कि बेसिकली आप हमारा जब प्रोडक्ट खरीदते हो तो आपको कब क्या मिलेगा, कौन से टाइमलाइन पे मिलेगा, सपोर्ट सिस्टम कैसा होगा, कि ऐसा तो नहीं है कि हम आपको एक बार प्रोडक्ट दे देंगे फिर आपसे बात करना बंद कर देंगे, तो सपोर्ट सिस्टम कैसा होगा। So for the next session, I'll save all these things, and now I like to hand over the session back to Mr. Surendra Singh. Thank you. You're most welcome. Host. Can you give me hosting rights? I am unable to. I have shared your rights. Okay. My screen is visible. Yes, sir. Okay. Now the technology part mein second thing is ERP software. This is one of the product is right attention. Other is the ERP.
we will show you ERP later. Come to the marketing and branding में school name and logo. Choose a memorable school name and logo. प्रमोशन स्ट्रेटेजीज में लोकल न्यूज़पेपर में आप करा सकते हैं, मॉम्स ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक, इंस्टाग्राम एड एंड रिफरल डिस्काउंट्स इज मोस्ट इंपॉर्टेंट. जो पेरेंट्स आपके यहाँ कुछ रेफरेंस देते हैं, उस पेरेंट्स के बेसिस पे जो एडमिशन होते हैं उनको आपको कुछ ना कुछ डिस्काउंट देना पड़ेगा या उन्हें रिवार्ड एंड रिकॉग्निशन कुछ देना पड़ेगा. देन कंडक्ट ओपन हाउस इवेंट, trial session, parenting workshop in your locality. Safety and hygiene protocol, it is most important thing. The daily cleaning, sanitization routine, then CCTV monitoring, child pickup safety, emergency preparedness, first aid kit, emergency contacts, fire extinguisher, ये आपके स्कूल में होनी चाहिए. Admission, सेट ए क्लियर एडमिशन क्राइटेरिया, फीस स्ट्रक्चर ट्रांसपेरेंट होना चाहिए. देन मेंटेन चाइल्ड पोर्टफोलियो, फीडबैक रिपोर्ट्स. एवरी पेरेंट्स आपके क्या फीडबैक दे रहा है वो इंपॉर्टेंट है, उस पर काम करना इंपॉर्टेंट है. एंगेज पेरेंट्स बाय रेगुलर PTMs एंड देयर अपडेट्स. ग्रोथ एंड एक्सपेंशन के लिए कलेक्ट फीडबैक एंड इंप्रूव रेगुलरली, वो ही एक इंपॉर्टेंट है. Use Google form or printed form to collect feedback without mentioning name of the parents. पेरेंट्स चाहते हैं कि वो अपना फीडबैक देते टाइम अपने नाम को डिस्क्लोज ना करें, तो यू कैन डू शो ऑल्सो. स्टूडेंट नेवर सीक फीडबैक इन ग्रुप्स. इट कैन टार्निश योर इमेज. ग्रुप में अगर एक आदमी निगेटिव फीडबैक देगा तो फिर वो कंटिन्यूअसली निगेटिव फीडबैक आनी शुरू हो जाएंगी, तो आपको कभी भी ग्रुप में फीडबैक नहीं देना है. देन एडिशनल सर्विसेज विच यू कैन प्रोवाइड इन योर प्ले स्कूल. यू कैन स्टार्ट ए डे केयर और एक्टिविटी सेंटर. यू कैन स्टार्ट ए CBSE ट्यूशन सेंटर इन द इवनिंग, क्योंकि मोस्टली जो प्ले स्कूल है वो मॉर्निंग में ही चलते हैं, इवनिंग में आपका एरिया फ्री रहता है. तो इसमें भी हम आपकी हेल्प कर सकते हैं. हम आपको नोट्स दे सकते हैं. 6 to 12 तक के सब सब्जेक्ट के नोट्स हमारे पास रेडीली अवेलेबल हैं, वो हम दे सकते हैं. आपके टीचर्स को ट्रेनिंग दे सकते हैं और CCTV से मॉनिटरिंग भी कर सकते हैं उनकी. स्टार्ट ए डांस क्लास, स्टार्ट ए योगा क्लास. देन वी हैव टीचर्स एजुकेशन प्रोग्राम. तो आई आस्क शिल्पी मैम टू गिव डिटेल अबाउट द एंटिटी प्रोग्राम. Good evening, everyone. Today I'll be sharing official guidelines for starting and operating a play school as outlined by the Aggregate Pre-Primary School Council. These guidelines are crucial for those interested in opening or running a play school, ensuring it is aligned with national standards. Now, sir will share a slide where the process starts with document submission. All the documents required are listed separately. If you are individual applicant or already running a school or you are a trust, so there is a separate list of documents mentioned. For example, अगर आप individual applicant है, then we need only Aadhaar and PAN card of applicant plus rent agreement, minimum 3 years का होना चाहिए. If you are already running a school and you want to open a play school or collaborate with us, then application from school is required with the Aadhaar and PAN card of principal or director. School audit report is required, one authorization letter and rent agreement. And if you are having a trust, then trust certificates like Society Registration Act 1860, Public Trust Act 1950, Memorandum of Association, audit report, PAN card of trust, Aadhaar and PAN card of members, authorization letter by trust and rent agreement if applicable. So it is recommended to submit these documents electronically for faster assessment and smoother processing. These documents ensure the organization is transparent, accountable and legally compliant. अगर आप पहले से ही इन सारे डॉक्यूमेंट्स को सबमिट करेंगे तो बाद में लीगल फॉर्मेलिटीज या लीगल कोई आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी. प्लस जब एक बार डॉक्यूमेंटेशन का वर्क और आपका कंप्लीट हो गया और आपने ये अप्रूवल आपको मिल जाता है, देन उसके बाद आता है इंफ्रास्ट्रक्चर.
Infrastructure plays a crucial role. So here is a list mentioned what kind of infrastructure we require for starting a play school, and photos and verification of the following is needed. First, given is center building photo. Minimum 2 classrooms should be there. Demo room, activity room, office room, plus principal and director's cabin, reception cabin, drinking water facility, fire safety and fire extinguishers should be installed. Separate washrooms for students and staff, parking and CCTV cameras should be installed. So all these infrastructure requirements we are mentioning to ensure a child safe and learning conducive environment. Depending on the location, there are different minimum area requirements. In metro cities, 1000 plus square feet area is required. In municipal corporation, if your location is in municipal corporation, then 1200 plus square feet area is required. And if your area or location is in Nagar Palika, Nagar Parishad or Gram Panchayat, then 1500 plus square feet area is required. So I request the all information which you provide must be true and valid. Authorization will be valid for 3 years, and council reserves the right to withdraw authorization at any time in case of false information or non-compliance. So we are expecting full transparency from your side. So in conclusion, we can say there are 3 steps major for setting a play school. Number 1 is legal compliance. Number 2 is well-planned infrastructure. And number 3 is sufficient area as per geographic location. So these guidelines are designed to maintain quality, safety and uniform standards in early childhood education. ये जितने भी हमने guidelines mention किए हैं, ये all over India में हमारे same हैं. Most probably अगर कहीं government की तरफ से कुछ extra होगा, तो then we'll provide you that also. Let us strive to maintain these standards and contribute to nurture a strong foundation for our future generations. Now I'll come to the second part. We are presenting a dual opportunity model, one that not only allows you to open a play school, but also empowers you to run 8 training courses within the same premises. आप प्ले स्कूल खोलने के साथ साथ ही वहां पर 8 डिफरेंट कोर्सेज स्टार्ट कर सकते हैं अपने टीचर्स के लिए. So this model not only ensures cost efficiency, but also guarantees a continuous supply of qualified and trained teachers for your center. So there are 8 courses mentioned in the brochure, which you can see. Number 1 is certificate course in Montessori teacher training. The duration of the course is 3 months. English language course is there. Duration of the course is 3 months. Then third course is NTT, 6 months course, diploma NTT. Fourth is diploma in pre-primary teacher training with specialization in English. And the duration for the course is 10 months. Next is BA Education, which is a 3-year degree course affiliated by Sikkim Manipal University. Next is Preschool Administration, which is the 1-year course, which includes the how to administrate the school, play school. 7th is Montessori Modern Teaching Methods with Art and Craft and School Decor. If your teachers are interested in learning school craft work or how to do decorations of the classwork, then this course is quite useful, and the duration of the course is 1 year. Now the 8th course is pre and primary teacher training with early childhood care and education, and the duration of the course will be 14 months. So what are the benefits of starting these courses? The first benefit is cost effective startup. These courses can run within your play school using same infrastructure, and you don't need to invest in a separate institute. Second benefit is you can train your own teachers who work with you. They will pay course fees out of their salary in monthly installments. I can give you an example. Suppose अगर आप एक teacher hire करते हैं and you are paying her 7,000 salary or 6,000 salary for 3-4 hours, then अगर वो NTT के लिए join करते हैं तो उन्हीं की सैलरी को में से डिडक्ट करके कुछ अमाउंट आप उनकी फीस का उसमें यूटिलाइज कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल 2000 आपने एनटीटी कोर्स का उनसे डिडक्ट किया मंथली बेसिस पे एंड यू हैव पेड देम 5000. सो इन दिस वे बेनिफिट टीचर्स के लिए ये रहेगा कि दे विल कंप्लीट एनटीटी एंड आफ्टर सर्टिफिकेशन दे बिकम क्वालिफाइड एंड एलिजिबल फॉर इंक्रीमेंट्स. Can you please mute yourself?
இப்படி வந்து Request everyone to please mute yourself. Please mute yourself. அவனும் எடுத்து விடுறான் நிறைய. So long-term advantage is you get a dedicated team of trained teachers. और आपके लिए ये रहेगा कि ऑपरेशनल कॉस्ट जो स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा लगती है लोगों को प्ले स्कूल स्टार्ट करते ही, तो वो फिक्स्ड कॉस्ट आपकी कम हो जाएगी. एंड योर सेंटर विल बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग एकेडमिक रेपुटेशन. और जो रेवेन्यू आएगा इन कोर्सेज से, इट विल सपोर्ट योर ऑपरेशनल कॉस्ट इन द अर्ली फेसेस. So in conclusion, it will reduce your startup cost and it provides you with qualified staff, increase your income through course fees, ensure high quality education delivery. So let us build a system where we nurture both children and the educators who guide them. Thank you. Okay, now I will show you the ERP system. This is our website. यहाँ पे आपको स्टाफ का लॉगिन मिलेगा, स्टूडेंट लॉगिन मिलेगा, एग्जाम का एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं, एग्जाम की स्कीम मिलेगी, रिजल्ट भी यहाँ से आप देख सकते हैं अपने बच्चे का. तो अगर हम एक स्टाफ लॉगिन पे जाते हैं, तो कुछ इस तरह का आपको दिखाई देगा. यहाँ पे आपको स्कूल का डैशबोर्ड मिलेगा. एक पर्टिकुलर स्कूल में कितने बच्चे हैं, कितना उनका टोटल पेमेंट आया है, कितनी फीस पेंडिंग है, एवरीथिंग यू विल गेट ऑन दिस डैशबोर्ड. इसके बाद आप इंक्वायरी कोई अगर एंट्री करते हैं तो इंक्वायरी की डिटेल आ जाएगी. लीव रिक्वेस्ट आप दे सकते हैं यहीं से अगर आप छुट्टी पे जा रहे हैं. एकेडमिक्स में जाएंगे आप तो एकेडमिक्स में क्लास, सेक्शन, सब्जेक्ट, अटेंडेंस, नोटिस बोर्ड, होमवर्क, स्टडी मटेरियल, ये सब मिल जाएगा आपको. आप क्लास मैनेज कर सकते हैं, मीडियम मैनेज कर सकते हैं, आपका इंग्लिश मीडियम है, हिंदी मीडियम है. स्टूडेंट टाइप मैनेज कर सकते हैं कि वो डे केयर का स्टूडेंट है, एकेडमिक का है या कोचिंग के लिए आया है. क्लास का टाइम टेबल, स्टाफ का टाइम टेबल, अटेंडेंस, स्टूडेंट लीव, स्टडी मटेरियल. तो आपको ये सारे सेक्शन इसमें मिल जाएंगे ईआरपी में. इट इज अ कंप्लीट ईआरपी. स्टूडेंट सेक्शन में आपको एडमिशन, स्टूडेंट्स कितने हैं आपके पास, आईडी कार्ड्स जनरेट करने हैं उनके, प्रमोट करना है किसी को, ट्रांसफर करना है दूसरे स्कूल में, सर्टिफिकेट आपको इशू करने हैं, वो सब यहाँ से अप्रिशिएशन, विनर सर्टिफिकेट, पास सर्टिफिकेट सभी मिल जाएंगे. एडमिनिस्ट्रेटर में आप जाएंगे तो एडमिन को देख सकते हैं कौन कौन एडमिन है. आप रोल डिफाइन कर सकते हो, हॉस्टल वार्डन का क्या रोल है, डायरेक्टर का क्या रोल है, क्या क्या उनको एक्सेस है, क्या क्या वो कर सकते हैं, वो रोल डिफाइन कर सकते हो इसमें. अकाउंटिंग में डैशबोर्ड में आप देख सकते हो कितनी फीस आ गई, कितनी पेंडिंग है. एक्सपेंसेस आप मॉनिटर कर सकते हो, फीस की इनवॉइस जनरेट कर सकते हो. अगर हम इसी फीस को देखें, फीस कलेक्शन, फीस इनवॉइस जनरेशन, ये सब यहां से हो जाएगा. फिर एग्जामिनेशन में जाएंगे तो मैनेज एग्जाम, एडमिट कार्ड, रिजल्ट डिक्लेरेशन, ये सब आ जाएगा आपका. लाइब्रेरी में अगर आप जाएंगे तो आपकी बुक्स ऐड करना, व्यू बुक्स, बुक को इशू करना, लाइब्रेरी कार्ड इशू करना, ये सब आ जाएगा. ट्रांसपोर्ट में आएंगे तो आपको व्हीकल मैनेजमेंट, रूट मैनेजमेंट,
एक्टिविटीज के लिए आएंगे तो आप एक्टिविटीज इसमें डाल सकते हो, ग्रीन डे सेलिब्रेशन, रेड डे सेलिब्रेशन, ये सब सेलिब्रेशन की एक्टिविटी जो पेरेंट्स को नोटिफिकेशन जाएगा। हॉस्टल में आप रूम एलोकेट कर सकते हो, हॉस्टल रूम्स। लेसन्स में आप लेसन प्लान बना सकते हो कि आज क्या पढ़ाई होनी है। और अगर कोई प्रॉब्लम है तो इसमें टिकट रेज करने का भी प्रोविजन है कि आप टिकट रेज कर सकते हो कि हमारा ये ईआरपी सही काम नहीं कर रहा है। इसी तरह से आपको एक पेरेंट्स का लॉगिन भी मिलेगा इसमें। अगर हम स्टूडेंट लॉगिन में जाते हैं तो यहां से आप फीस इनवॉइस देख सकते हो, फीस स्ट्रक्चर देख सकते हो, पेमेंट आपने कब कब किया, स्टडी मटेरियल, होमवर्क, नोटिस बोर्ड, इवेंट्स, क्लास का टाइम टेबल, लाइव क्लासेस, बुक इशूड, एग्जाम का एडमिट कार्ड, सर्टिफिकेट अगर कोई मिला हुआ है तो, अटेंडेंस, लीव रिक्वेस्ट, ये सब यहां से आता है। अगर हम सर्टिफिकेट की बात करें, देखते हैं अगर इनको कोई सर्टिफिकेट मिला हुआ है, ये सर्टिफिकेट उनको मिला हुआ है, पास सर्टिफिकेट, ये इनका पास सर्टिफिकेट है। यहीं से आप इसको प्रिंट भी निकाल सकते हो। तो ये हमारा ईआरपी सेक्शन है। तो अभी अगर किसी का क्वेश्चन है तो ही और शी कैन अनम्यूट और आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं हमसे। आप अनम्यूट करिए, अनम्यूट अपने आप को, आप म्यूट पे हैं। हमारा जो नेक्स्ट सेशन होगा दैट विल बी 3 डे सेशन, क्योंकि आज हमने बहुत फास्ट फास्ट ये सब कुछ करा है। तो अगर हम आपको एक एक पॉइंट समझाना चाहते हैं या कोई हमें से गाइडेंस लेना चाहता है तो वो पेड बेसिस पे रहेगा। इट इज ए 3 डे सेशन, 3 दिन का सेशन है जो आपका फ्राइडे सैटरडे और संडे को रहेगा। तो मैं एक लिंक क्लिक कर भेज रहा हूं, इसकी फीस है 3000 रुपीज। तो उस लिंक पे क्लिक करके आप पेमेंट कर सकते हैं और जो 3 डेज 3 दिन का सेशन है उसमें आप रजिस्टर कर सकते हैं अपने आप। पेमेंट लिंक आपकी स्क्रीन पे चला गया होगा। तो जो लोग भी इसमें ज्वाइन करना चाहते हैं, इट विल बी वेरी हेल्पफुल। हम एक एक चीज को बताएंगे, ईआरपी कैसे इंप्लीमेंट करना, इस सिस्टम को कैसे इंप्लीमेंट करना, उसमें प्राइसिंग भी डिस्क्लोज करेंगे, यूनिफॉर्म आपको कितने की मिलेगी, और बाकी जो स्कूल दे रहे हैं उससे कम में ही मिलेगी, लेकिन उसमें हम 1 to 1 डिस्कस करेंगे एक एक के साथ। किसी का कोई क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन? या तो सब कुछ समझ में आ गया या कुछ समझ में नहीं आया।
सर आप क्या सर्विस प्रोवाइड करेंगे, लाइक यूनिफॉर्म, ईआरपी एंड फर्नीचर वगैरह भी प्रोवाइड कराएंगे? किस टाइप से मतलब बिल्कुल बिल्कुल, आइडिया दीजिए। हमारे पास सब कुछ है। यूनिफॉर्म भी है, बुक्स भी हैं। अगर आपको अपने नाम हम्म से बुक चाहिए तो फिर मिनिमम हम्म 100 सेट की रिक्वायरमेंट है। 100 सेट का एमओक्यू है। 100 सेट का ऑर्डर देंगे तो हम आपके स्कूल के नाम से ही बुक दे देंगे। और अगर उससे कम की ओके क्वांटिटी रहेगी तो फिर एग्रीगेट प्री प्राइमरी स्कूल के नाम से आएगी। ओके ओके। एंड सर फर्नीचर वगैरह जो टॉयज वगैरह होते हैं एंड पूरी एसेसरीज होती है इसकी, हाँ हाँ, तो वो वो भी किस मिल जाएगी, तरीके से वो आप भी। प्रोवाइड करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, सब कुछ मिल जाएगा। हम आपके साथ नेक्स्ट जो मीटिंग होगी उसमें एक हम्म। कैटलॉग शेयर करेंगे कि क्या क्या फर्नीचर है और ठीक क्या है। क्या उनकी प्राइसिंग है। ओके ओके सर, यूनिफॉर्म कहाँ की से हैं आप? प्राइसिंग भी, फर्नीचर की प्राइसिंग भी, सारा कैटलॉग हम आपके साथ शेयर करें। ओके ओके सर, कहाँ से हैं आप बेसिकली? देखिए, अभी हमारा जो ऑपरेशन है वो चल रहा है आईआईटी मद्रास, चेन्नई से। लेकिन वी ओके आर ओके। ओपनिंग सून आवर ऑफिस इन दिल्ली एनसीआर। अगले 2 महीने दिल्ली में हम एनसीआर दिल्ली में एनसीआर किधर? में ओपन कर देंगे, फरीदाबाद मोस्ट। फरीदाबाद, ओके ओके। आप कहाँ से हैं? सर मैं उत्तर प्रदेश से हूँ। उत्तर प्रदेश में कहाँ से? डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर। ओके, वो तो पास में ही है। यस यस। और किसी का क्वेश्चन? प्ले स्कूल रिकॉग्निशन के लिए हम्म। क्या प्रोसेस है और व्हाट आर द चार्जेस? आप कहाँ से हैं? हैदराबाद। हैं? मला नको हे करू हैदराबाद हैदराबाद। हैदराबाद से हैं। ओके, हैदराबाद में एक तो आपको, ये आप अपने नाम से चलाना चाहते हैं, किसी की फ्रेंचाइजी है? ऑलरेडी चल रहा है मेरा स्कूल ऑलरेडी चल रहा है मेरा स्कूल, आई वांट रिकॉग्निशन एंड प्रोसेस ओके ऑफ रजिस्टरिंग थ्रू गवर्नमेंट। ओके, तो स्टेट गवर्नमेंट का जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है वहां से आपको एनओसी लेना पड़ेगा। एक फायर का एनओसी लेना पड़ेगा। उसके अलावा ट्रस्ट या सोसाइटी रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। सोसाइटी रजिस्टर्ड सोसाइटी। सोसाइटी रजिस्टर्ड है तो हाँ आप सोप एंड एस्टेब्लिश एक्ट में रजिस्ट्रेशन करा लो। और दूसरा, एक एजुकेशन डिपार्टमेंट में डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर के यहाँ से या आपके नियरेस्ट जो भी कुछ आंगनवाड़ी केंद्र हो वहां से भी आपको पता लग जाएगा कि कहाँ रजिस्ट्रेशन कराना है इसका। ओके। कई कई स्टेट ने अभी ऑनलाइन भी शुरू कर दिया है रजिस्ट्रेशन का, वो हमें देखना पड़ेगा आंध्रा में करा के नहीं करा। तेलंगाना, यू आर फ्रॉम इन तेलंगाना ना? हैदराबाद स्टिल। हाँ, आप तेलंगाना में से है ना? हाँ हाँ तेलंगाना। हाँ, तो हमें चेक करना पड़ेगा तेलंगाना ने ऑनलाइन स्टार्ट करा कि नहीं करा। ओके थैंक यू। मेसेज काहीतरी प्रॅक्टिस करत होते. सुरेखा जी, आप कुछ पूछ रहे हैं क्या? तुझा अभ्यास कर तू गपचूप कोई और क्वेश्चन किसी का? तो लेट अस, अगर किसी का क्वेश्चन नहीं है तो रैप अप करें इसको। लिंक आपके पास सबके पहुंच गया है। जो लोग भी नेक्स्ट पेड सेमिनार ज्वाइन करना चाहता है वो पेमेंट करके प्लीज। ओके, थैंक यू। Thank you, everyone. Thank Good you, night. everyone. Nothing else doing my another work.